So hello दोस्तों, how are you? I hope you are doing well. So इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स. ओके. So what is the data types? Okay, we have already discussed. Data type is needed to declare or define the variables. Okay, and variable also is declared. Discussed that variable is the named that hold the values, hold the data. Okay, and we can fetch the data. Okay, we can read the data using variable names. Okay, so basically the use case that need to declare that variables need to data type, and data type then variable name, and then operator and whatever the value you are assigning. So whatever the value will be assigned, will use to assign the variables. Okay, so that indicate which type of data will contain by the variables using data type. Okay, so हमने ये डिस्कस किया है कि डेटा टाइप इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट डबल. ओके, सपोज हियर वी आर इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 10. ओके, सो क्या है ये? दिस इज द इंटीजर डेटा टाइप, दिस इज द वेरिएबल नेम, एंड दिस वेरिएबल क्या करता है? डेटा स्टोर करता है 10. ओके, एंड 10 किस टाइप का डेटा है? इंटीजर टाइप का, मीन्स पॉजिटिव निगेटिव. ओके, so that variable can hold only integer type data, that is indicating. If you are using here data type, okay, this data type int, so that variable num variable can store only integer data type. Okay, so we have already discussed in the previous video. Okay, and we have used that. Okay, how to use the data type. Okay, so that's all that. But there are more things in data types. Okay, so basic data type, how many keyword we use to declare the variables, how many data type we use to keyword, how many data types we use to declare the variables. Okay, and there are four keywords. Data type keywords, there are four keywords: integer, character, float, double. Basically we use to declare the variables. Okay, if we are using character, so that character we can assign only the character, okay, values inside the character variables. Okay, if we are using float, so that float values means decimal values. Okay, we can assign in that float number. Okay, and double same but size will be increased. Okay, so here there are some other data type as well. Okay, we use short. Basically it will take 4 byte. Okay, if you are using directly here, so it will take 4 byte. Okay, 4 byte, bytes, 4 bytes. It will take I think 1 byte. Okay, I will run the code. Okay, so we can find the exact size. Okay, this will take 4 bytes, bytes. Okay, and this will also 8 bytes, the size of double 8 bytes. Okay, so that is the size of the, that is a memory allocation if we are using this data type integer, character, float. अगर हम इंटीजर यूज करेंगे तो मेमोरी में कितना बाइट स्पेस लेगा? 4 बाइट. कैरेक्टर अगर हमने सपोज हियर हमने एक डिक्लेयर किया वेरिएबल इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 10, सो ये नंबर जो वेरिएबल होगा मेमोरी में कितना स्पेस लेगा? 4 बाइट स्पेस लेगा. 4 बाइट स्पेस क्रिएट होगा, उसमें 10 वैल्यू असाइन हो जाएगा एंड नेम हो जाएगा नम. सो तो इस 10 के लिए कितना मेमोरी एलोकेट हुआ? 4 बाइट्स. ओके, बट वी नो दैट द रेंज, ओके, हम लोग को पता है कि कितने रेंज की वैल्यूज इसमें हम यूज कर सकते हैं इस नम में. सो बेसिकली हम यूज करते हैं शॉर्ट इंटीजर डेटा टाइप, अनअसाइंड शॉर्ट इंटीजर डेटा टाइप. ओके, अनअसाइंड इंटीजर. सो ये डेटा टाइप इसलिए हम यूज करते हैं. अब सपोज हमें पता है कि हम 10 बहुत, अगर हम कोई नम वेरिएबल ले रहे हैं, इस नम वेरिएबल में कितने वैल्यू आ सकते हैं? मुश्किल से 0 से 100 के बीच में आ सकते हैं.
तो हम क्यों 4 बाइट स्पेस लेंगे, ठीक है, क्यों हम इंटीजर डिफाइन करेंगे केवल, क्योंकि ये तो 4 बाइट स्पेस लेगा तो मेमोरी एलोकेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, हमें पता है कि 0 से 100 के बीच ही वैल्यू आ सकती है इसमें, तो हम इसको ले लेंगे शॉर्ट इंटीजर, SOHORT, शॉर्ट इंटीजर डेटा टाइप, ओके। सो what will happen, it will take 2 bytes, okay, it will take space 2 bytes, okay। अगर हम केवल इंटीजर यूज कर रहे हैं, इंटीजर नंबर 10, तो ये कितना बाइट लेगा, 4 बाइट, ओके। तो क्या होगा, मेमोरी 2 बाइट एक्स्ट्रा लेगा, जिससे मेमोरी एलोकेशन ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा, मेमोरी की यूटिलाइजेशन हम सही तरह से यूज नहीं कर पाएंगे और स्पीड वगैरह स्लो हो जाएगी। तो इसलिए ये शॉर्ट इंटीजर डिफाइंड हुआ। सेम वैसे ही अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर मीन्स इट विल कंटेन ओनली पॉजिटिव नंबर, ओके। शॉर्ट इंटीजर हम लेते हैं तो इसका रेंज कितना होता है, -32,000 टू -32,700 टू 32 पॉजिटिव 32,700, ओके, 67, ओके। एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %HD। तो आपको समझ में आ गया ना कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ शॉर्ट इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर। शॉर्ट इंटीजर क्यों लेंगे, जब हम पता है कि निगेटिव नंबर कोई भी वेरिएबल हम यूज करेंगे और उसमें निगेटिव वैल्यूज नहीं आएगा, तो उसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे, अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर, ओके। एंड सपोज हमको पता है कि यार ये आप अनसाइंड बाय डिफ़ॉल्ट अनसाइंड ही होता है, ओके। लेकिन हमको पता है कि रेंज 4 टू इतना इतना के बीच का डेटा आएगा पॉजिटिव नंबर, तो हम अनसाइंड इंटीजर लेंगे, ओके। अगर ऐसे डिफ़ॉल्ट लेते हैं तो इसमें -2 इतना रेंज से इतना रेंज तक लेगा। लॉन्ग इंटीजर वैल्यूज बढ़ जाएगी, माइनस इतना से और इतना तक लेगा, ओके। अनसाइंड लॉन्ग ये भी पॉजिटिव लेगा। सो ये आपके कितने डेटा टाइप है, ओके। सो वी कैन यूज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ओके। सो ये आपको समझ में कब आएगा, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे। साइंड कैरेक्टर की रेंज क्या होती है, -128 से 127, अनसाइंड की 0 टू 55, फ्लोट 4 बाइट लेगा, इतनी रेंज होती है, डबल 8 बाइट इतनी रेंज होती है, लॉन्ग डबल 16 बाइट लेगा, इतनी रेंज होती है। और इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जब आपको प्रिंट कराना होगा कि लॉन्ग डबल को प्रिंट कराएं, तो आपको क्या होगा, ये %LF जरूरत पड़ेगी, डबल के लिए भी LF, ओके। सो हियर देखिए कैपिटल L लिख रहा है लॉन्ग डबल के लिए, इधर डबल के लिए स्मॉल LF, ओके। फ्लोट के लिए %FC कैरेक्टर। से फॉर्मेट स्पेसिफायर नीड टू प्रिंट द वैल्यूज, ओके। तो आपको समझ में आया होगा ना कि बेसिकली कितने टाइप के हम डेटा टाइप यूज करते हैं। बेसिकली 4 डेटा टाइप हैं हमारी, ओके, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। बट ये क्या करता है कि एक डिफ़ॉल्ट रेंज होती है, ओके। एंड डिफ़ॉल्ट अभी ये यूज करेंगे इंटीजर तो 4 बाइट लेगा, लेकिन हमें तो 0 से 100 तक की डेटा चाहिए, तो हम क्यों 4 बाइट स्पेस लेंगे, तो शॉर्ट इंटीजर डिक्लेयर कर देंगे। हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर ही आएगा केवल, ओके, तो अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर ले लेंगे। हमें पता है कि यार कैरेक्टर आएगा अनसाइंड कैरेक्टर, तो जिसकी रेंज हो 0 टू, ये रेंज क्या बताता है, ये वो तो फ्लोट 4 बाइट, ये बेसिकली आप जब आगे पढ़ेंगे, आगे जब यूज करेंगे इंडस्ट्री में, तो आपको पता चलेगा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट कि हमें कौन सा डेटा टाइप लेना है, ओके। बट you should know about the data type, okay, how many data types we can use and what is the purpose of that, okay. So basically there are 4 types of data type, okay, in C: integer, character, float, double, okay. And integer has also types, okay, which short integer का भी यूज करेंगे, अनसाइंड और शॉर्ट इंटीजर का भी यूज करेंगे, अनसाइंड इंटीजर का भी यूज करेंगे, ओके। लॉन्ग इंटीजर का, अनसाइंड लॉन्ग, लॉन्ग इंटीजर, ओके। एंड साइंड कैरेक्टर कब लेंगे, अनसाइंड कैरेक्टर कब लेंगे, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल कब लेंगे, ठीक है। तो ये भी एक टाइप है, ठीक है। अब हम चलते हैं कंसोल पे, मीन्स कोड एडिटर पे, एंड देन रन करते हैं, ठीक है। तो हियर हमने देखते हैं कितना साइज होता है, तो हम प्रिंट ऑफ या ऐसे करते हैं, इंटीजर, ओके, इंटीजर
size of एस आई जेड ई साइज, या डायरेक्ट हम प्रिंट कराते हैं ना, आप समझ सकते हैं, ये साइन कर रहे हैं PRINTF प्रिंट ऑफ, ओके। साइज ऑफ SIZ साइज ऑफ इंटीजर, कितना साइज लेगा, मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी MEMORY मेमोरी MEMORY मेमोरी ALLOCATION allocation of integer, okay. Here SIZ, there is a method size of, okay, and we can put int, okay, and here we can say percentage d, okay। तो ये हमें पता चल जाएगा कितनी साइज ऑफ इंटीजर, यहाँ पे आप चाहिए सेमीकोलन। अच्छा, एक्चुअली हम यूज करते हैं ना जावा स्क्रिप्ट का, ज़्यादा ध्यान है ना इसमें, तो सिंटैक्स भूल जाते हैं कभी। ये देखिए मेमोरी एलोकेशन ऑफ इंटीजर कितना है, 4 बाइट्स, ओके। सेम मेमोरी एलोकेशन, यहाँ पे हमने डाल दिया /n, सो लाइन चेंज हो जाएगा। मेमोरी एलोकेशन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, कितना होगा इसका, सॉरी यहाँ पे CHR कैरेक्टर /n, ओके। तो मेमोरी एलोकेशन ऑफ कैरेक्टर कितना बाइट ले रहा है, 1 बाइट, ओके। एंड सेम फॉर /n, ओके, /n float, FLOAT float, okay, and this is the character, this is the FLOAT float, this is for DOUBLE double, here DOUBLE double, okay। So you can see here the size of, okay, what is the memory allocation of integer, 4 byte, memory allocation of character 1 byte, memory allocation of float 4 byte, memory allocation of double 8 byte, okay। And same we are taking here memory allocation of short integer, short integer, short, okay, and there is unsigned character, signed character, SIGNED, signed character, okay, unsigned short integer, okay, unsigned short integer, unsigned short integer, signed short integer, and signed SIGNED, signed character, okay। So like that you can get every data type, okay, size of every data type। तो आप इस तरह आप डेटा टाइप्स के साइज को आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए मेमोरी एलोकेशन ऑफ इंटीजर 4 बाइट, मेमोरी एलोकेशन ऑफ कैरेक्टर 1 बाइट, मेमोरी एलोकेशन ऑफ फ्लोट 4 बाइट, मेमोरी एलोकेशन ऑफ डबल 8 बाइट, मेमोरी ऑफ एलोकेशन शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट, मेमोरी एलोकेशन ऑफ अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट, मेमोरी एलोकेशन ऑफ साइंड शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट, मेमोरी एलोकेशन ऑफ साइंड कैरेक्टर 1 बाइट, ओके। सेम you can add for long integer, okay, long integer and unsigned long, okay, and long double, we can say here, suppose here we remove signed character here
and what will be size you can find here. Okay, and okay, run signed long. Okay, long double hata signed. So you can see here what is the memory size 16 byte for long double. Okay, so all other remaining data types you can use and you can print and you can get the size using size method. Okay, and you can get the size of the uh, data types. Okay, so here you can say long double whatever the you can use and you can get the size. Okay, so how many data types basically we use integer character float double, but वी सपोज हमको ज़रूरत है कि यार क्यों हम मेमोरी वेस्ट करेंगे, ठीक है, हमें मेमोरी को बर्बाद नहीं करना है, ओनली मेमोरी हमें यूटिलाइज करना है जितनी ज़रूरत है। तो हमें पता है कि कितनी से अगर हमें पता है कि ये माइनस 32,768 से 32,767 के बीच में ही डेटा इस वेरिएबल में आएगा जो वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे, तो उसको हम शॉर्ट इंटीजर डेटा टाइप यूज कर लेंगे। हमको पता है कि 0 से 65,000 के बीच में ही डेटा आएगा तो उसे अनसाइंड शॉर्ट यूज कर लेंगे, जिससे हमें पता रहेगा कि कोड रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है और कोड समझ में भी आता है कि क्यों अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर यूज किया। हमने केवल इंटीजर यूज कर लिया तो हमें पता नहीं है ना कि ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है या नेगेटिव नंबर आया, तो हम एज्यूम करेंगे ओके पॉजिटिव नंबर भी आएगा नेगेटिव नंबर भी आएगा और कंपाइलर एज्यूम करेगा ओके हमें 4 बाइट देना ही देना है, कंपलसरी है। बट हमें पता है कि यार हमें 0 से 65,000 के बीच में पॉजिटिव नंबर ही आएगा तो हम अनसाइंड यूज कर लेंगे तो रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। कोई भी प्रोग्रामर कोई भी समझेगा अरे अनसाइंड इंटीजर ओके इस मीन्स ये पॉजिटिव नंबर रखेगा और इसकी रेंज इतने से इतने के बीच में होगी, ठीक है, और फॉर्मेट ये यूज करेंगे। अब चलते हैं हम सपोज ये तो हम साइज निकालने के लिए प्रिंट करा लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं, let's remove this one. Okay, and here we are declaring number int integer type number is equal to 10. Okay, here float 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 number is equal number f number means float is equal to 10.89. Here we can add character ch is equal to c. Okay, and here double d number is equal to 34.89. ओके, अब हम इसको चेक करते हैं कि साइज कितना है। मेमोरी एलोकेशन ऑफ नाम, हियर नाम मेमोरी एलोकेशन ऑफ, आप वेरिएबल भी डिक्लेयर करेंगे तो साइज उतना ही लेगा जितने आप क्योंकि आप जो डेटा टाइप यूज करेंगे मेमोरी तो उतना ही एलोकेट होगी उस वेरिएबल को। ओके, so ch here ch okay, and dnum so here memory allocation of num variable 4 byte, memory allocation of f num float number is 4 byte, memory allocation of ch character 1 byte, memory allocation double number 8 byte. ओके, सो ये ऐसे आप गेट कर सकते हैं कि कितना मेमोरी यूटिलाइज हुआ फॉर एवरी वेरिएबल्स। ओके, सो दैट इज द वेरिएबल एंड आपको पता ही है कि वेरिएबल कैसे मतलब डेटा टाइप क्यों यूज करते हैं। डेटा टाइप इसलिए यूज करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। ओके, एंड दैट वेरिएबल इंडिकेट करेगा कि किस टाइप का डेटा, नंबर क्या एनयूएम वेरिएबल क्या इंडिकेट कर रहा है कि किस टाइप का डेटा ये होल्ड करेगा, मीन्स इंटीजर टाइप का ये डेटा होल्ड करेगा। फ्लोट टाइप का एफ नंबर वेरिएबल अपने क्रिएट किया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि एफ नंबर जो वेरिएबल है ये फ्लोट टाइप का ही डेटा स्टोर करेगा। आप इसमें स्ट्रिंग कैरेक्टर अगर आप असाइन करते हैं तो ये स्टोर नहीं करेगा। ओके, आपको स्ट्रिंग डिफाइन करना है तो कैरेक्टर एरे डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, कैरेक्टर एरे टाइप का वेरिएबल एंड देन यू कैन ऐड द स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, एंड हियर डी नम इंडिकेट कर रहा है कि ये किस टाइप का डेटा टाइप यूज कर रहा है, डबल। सो डी नंबर वेरिएबल जो है डबल टाइप का
डेटा टाइप का वैल्यूज स्टोर करेगा. ओके, and based on the data type, whatever you have used the data type, based on the data type, C compiler will generate, okay, C code executor will generate the memory allocation, will assign the memory based on the data type. Whatever the data type you have used, that data type, based on that data type, the variable will assign the variable has memory allocation. ओके, सो बेस्ड ऑन, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी आप वेरिएबल यूज करेंगे, जिस टाइप का डेटा टाइप का वेरिएबल होगा, उसी टाइप की मेमोरी एलोकेट होगा बाय द सी कोड एग्जीक्यूटर. हियर देख रहे हैं ना आप, अगर आप कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो आपको कितना 1 बाइट डेटा है, 1 बाइट मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रहा है. हियर आप इंटीजर टाइप का नंबर यूज कर रहे हैं तो नंबर को कितने बाइट का, 4 बाइट का डेटा यूटिलाइज हो रहा है. अगर आप हियर शॉर्ट यूज कर लेंगे, SHORT शॉर्ट इंटीजर, तो आप 2 बाइट मेमोरी एलोकेशन हो जाएगी. हियर 2 बाइट मेमोरी एलोकेशन. तो ये बेस्ड ऑन द डेटा टाइप C executor will assign the memory. Okay, so that is the data type. Okay, so you can basic data type, integer, character, float, double. Okay, and 4 byte, 1 byte, 4 byte, 8 byte. Okay, and here short integer format. Okay, and suppose हमने शॉर्ट इंटीजर लिया है, ठीक है, एक और हमने छोड़ दिया, शॉर्ट इंटीजर लिया. अगर हमको इसको प्रिंट कराना है, ठीक है, वैल्यू को प्रिंट कराना है शॉर्ट इंटीजर को, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ परसेंटाइज डी नहीं यूज करेंगे. परसेंटाइज डी फॉर्मेट किसके लिए होता है, इंटीजर के लिए होता है. ये इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है. लेकिन शॉर्ट इंटीजर के लिए क्या यूज करते हैं, परसेंटाइज HD. ओके, सो हियर हम यूज करेंगे HD, तो आपको नंबर मिल जाएगा. ये ठीक है, तो आपको क्या क्या वैल्यू मिल रहा है, HD, and here we have given here. Okay, so value will be 10. Okay, here we can see. Okay, शॉर्ट इंटीजर को प्रिंट करने के लिए HD फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे. तो हियर शॉर्ट इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर HD, अनसाइंड शॉर्ट HU, परसेंटाइज HU, अनसाइंड इंटीजर परसेंटाइज U, इंटीजर परसेंटाइज D, लॉन्ग इंटीजर परसेंटाइज L, अनसाइंड लॉन्ग साइंड कैरेक्टर परसेंटाइज अनसाइंड कैरेक्टर परसेंटाइज C, फ्लोट परसेंटाइज F, डबल परसेंटाइज LF, एंड लॉन्ग डबल परसेंटाइज कैपिटल LF. ओके, सो ये हम यूज करते हैं. तो आपको पता है ना कि क्यों यूज कर रहे हैं ये सब अनसाइंड कैरेक्टर. साइंड कैरेक्टर बेसिकली जब हम आगे जब इंडस्ट्री में काम करेंगे तो ये मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए हम मेमोरी को घटाने के लिए हम यूज करते हैं ये सब. अदरवाइज बेसिकली अगर सपोज मान लो हमने इंटीजर यूज कर लिया, ठीक है, इंटीजर हमने डेटा टाइप यूज कर लिया, हम 0 से 100 तक ही डेटा आएगा, हमें पता है 0 से 100 तक ही डेटा आएगा, तो हम क्यों 4 बाइट स्पेस मेमोरी को यूटिलाइज करवाएंगे. तो हम इसलिए शॉर्ट इंटीजर डिफाइन कर देंगे जिससे मेमोरी यूटिलाइजेशन 2 बाइट हो जाएगी, ठीक है. तो और स्पीड भी हमारी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि कहाँ 4 बाइट यूज करेगा मेमोरी, कहाँ आप, हम तो एक बात कर रहे हैं ना. अभी हमने मेमोरी है जैसे प्रोग्राम कोई किया जिसमें 50 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का, तो कितना 50 चौका 200 बाइट मेमोरी एलोकेशन होगी. लेकिन हमने शॉर्ट इंटीजर यूज कर लिया तो 50 दूना 100, तो कहाँ 200 मेमोरी बाइट्स में 200 मेमोरी बाइट एलोकेट होगी और कहाँ 100 बाइट मेमोरी एलोकेशन होगी. तो अंतर है ना, और स्पीड भी बढ़िया हो जाएगी. तो हम तो अभी सिंपल जब एक प्रोग्राम करते हैं एक इंडस्ट्री में जब कोड लिखते हैं तो उसमें 50-50, 100-100, 200 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. ओके, तो ये इसलिए ये सब डेटा टाइप डिफाइंड हुआ है कि किस पर्पज के लिए कौन सा यूज करेंगे. ओके, बट बेसिक कितने होते हैं, इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट डबल. ओके, तो यू कैन यूज इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट डबल. एंड आपके माइंड में अगर आता है कि यार नहीं शॉर्ट इंटीजर से काम हो जाएगा, आप सोच सकते हैं तो शॉर्ट इंटीजर यूज कर लीजिए. आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर ही हमें लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है, तो अनसाइड शॉर्ट यूज कर लीजिए. ओके, आपको पता है कि मतलब पॉजिटिव नंबर लेना है लेकिन इतने से इतने रेंज के बीच में लेना है, तो आप ये लीजिए अनसाइंड इंटीजर. वैसे लॉन्ग इंटीजर, तो ऐसे आप ले सकते हैं. देखिए,
तो ये है डेटा टाइप। ओके, इस तरह डेटा टाइप हम यूज करते हैं सी में। और हम क्यों इस पे डेटा टाइप पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए फोकस कर रहे हैं कि डेटा टाइप और वेरिएबल्स ओके इज द बेसिक एंड फर्स्ट टॉपिक्स। तो आपके दिमाग में अगर ये क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट पॉइंट भी क्लियर होगा। अगर आप डेटा टाइप और वेरिएबल में कंफ्यूज रहेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग समझने में बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब प्रॉब्लम होगा, कहने का मतलब। और हमने ये डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट कैच में कैसे मेमोरी यूटिलाइज होता है, कैसे एलोकेट होगा, कैसे प्री प्रोसेस करेगा फाइल, कैसे कोड को कंपाइल करेगा, फिर असेंबली कोड कैसे जनरेट होता है, फिर उसे सी कोड एग्जीक्यूटर कैसे बाइट कोड को मशीन कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो ये आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, तो ये एवरी वीडियो इज लिंक्ड टुगेदर, एक दूसरे से लिंक है। तो आपको आप बिगिनर हैं तो आपको शुरू से देखना पड़ेगा वीडियो एंड देन आपको समझ में आएगा। तो अब मुझे लगता है कि वेरिएबल और डेटा टाइप में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, एंड कॉन्सेप्ट वुड बी क्लियर। ओके, फिर भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स है और मतलब कोई भी सजेशंस है आपके माइंड में, तो यू कैन ऐड इन द कमेंट बॉक्स। ओके, and I will definitely answer on that question. Okay, and if the video is going to helpful for you, okay, so you can like, okay, and you can share with your colleagues, okay, that can also learn the things, okay, whatever you have. Okay, and okay, that's all. Okay, thank you so much. Bye.